Good evening, everyone. So, in the previous discussion, topic was it, and I hope you people remember, but still some portion left here, and that entire discussion I will do here. What about the topic of discussion? I hope you remember, guys. This is a topic, those discussion I was doing in the previous lecture, how technology affects development on human life. And you know, guys, as I told you, advantage and disadvantage both, the technology work in the human life, so as a positive and as a negative. So last time you people have seen it. One discussion that I finished in the previous lecture about definition. Okay, about definition. Overall, what about the concepts of science and technology that I explained you in the previous lecture. The second one, in various discipline, there is a role of technology. Okay, and at every level, either you will go for energy, you go for space, information, communication, defense. Yeah, a part of this, guys, robotics, artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology, and medicines. Everywhere, technology play a very important role. But see, again I repeat, these technology, those play a very important role in every disciplines of technology. Okay, here everywhere have advantages and its disadvantages. In previous lecture, I told you guys how energy sector have advantages and disadvantages with science and technology. How in space technology, what about the technological advantages and disadvantages? And similarly, I discussed with you about information communication technology and in defense sector. Okay, everyone, fine. Today, again in the conceptual discussion, some more advantages and disadvantages still left about AI and robotics. See, one thing I will tell you guys, as in your syllabus, robotics and AI mentioned as a separate topic. But you should be very clear, robotics is already one of the example of AI. I don't know who made your syllabus, and those person who made the syllabus, even maybe that person not clear that robotics already is one of the example of AI. But it's okay, your examiner make the AI and robotics as a separate topic. So I will explain both as a separate. But you remember in this beginning, robotic is what? This is one of the example of AI. Fine. Later on, I will go into the discussion of nanotechnology, biotechnology, and medicines. So what about the other advantages and disadvantages of technology in human life in different other disciplines? So in different other discipline, which discipline left here, guys? Those I could not discuss in the earlier lecture. So robotics, AI, nanotechnology, biotechnology, and medicine. And I'm very sure, guys, you people will try to connect with me with your response. Whenever I will ask any queries, you people respond me. I can see your chats every moment of time, and if any relevant informations are there, so I will connect with you regarding your doubts and discussions. Okay, I hope you tell me, guys, those in the previous lecture I explained with you people clear with that entire concepts or not? Okay, last lecture was just a brief introduction about technology, and somehow I think so you people got interest in the subjects. Okay, so I'm waiting your response, so you just go on through chat that I will see you. And today you just see, guys, about the AI and robotics. I'm bringing both together especially. Okay, and its advantages and disadvantages you see here, guys. So what will be the advantage and disadvantage? Okay, yeah, overall how this AI, artificial intelligence, and robotics. Artificial intelligence and robotics have advantages and disadvantages both. Yeah, overall how it affect the human life. Again I repeat, robotics is already one of the example of AI. Do you know what is the meaning of AI, guys? AI, artificial intelligence, means a machine that you will develop, and this machine will start to think like to the human brain. So a machine plus brain you combine together, and now it will become as a artificial intelligence. Through a very simple manner, if I will define you what is a artificial intelligence, so very simple way, I hope you can understand. You develop a machine, and within the machine you try to provide all the informations those human brain have. Means a machine is start to think, means a machine is start to take a judgment, means a machine start to give you a response. In that way, guys, similarly as our brain will think
and then respond. Similarly, a machine you will develop, and this machine will work like to the human brain type. And why this machine work like to the human brain type? Here we people do the application of computer science. Application of computer science means I am telling you guys in this case how a machine will work with the brain through the help of programming. Okay, and programming is the part of computer science. Okay, so maybe for many of you people guys, you people have issues in the beginning to understand what is AI. So now you people very clear what is AI. Okay, now I can connect very easily about its advantages and disadvantages. So the one will go into the discussion of advantages, and second we will go into the discussion of disadvantages. Okay, so advantages and disadvantages. Okay guys, fine. Again I repeat, what is AI? So what is AI? It's a very simple manner, a machine who will think like to human brain. And how a machine will think like to the human brain? This machine will totally programmed. Okay, and program according to human brain. So what about the human judgment, human decision, human analysis? As human brain is taking, here this machine will take this entire response. Even guys, I can give you an example that you people know very well. As a one of the robots, I will tell you that is Sophia. Sophia I will explain with you during the discussion guys. This is the first humanoid robots got citizenship of Saudi Arabia. Okay, that is the first robot who got citizenship. Okay, and this robot, that name is a Sophia. It's a machine, and exactly it will think like to the human brain. And how this Sophia will think like to the human brain? It is programmed. And where is the programming type of terms come? Under computer science. And this is the reason here I can also tell you AI is what? AI is the integral part of computer science. And robotic is the example of AI. So I hope you people can connect entire thing. Okay, Alexa, definitely Shashank, Alexa. Decision making ability, definitely right. Okay, these all topics, the information, those you mentioned, it's absolutely right. Fine. Now we'll come into how, what about the advantages and disadvantages. So what will be the advantages and disadvantages? You just try to think over it. So advantages and disadvantages. See guys, in this case of advantages and disadvantages, even can you give me the example of AI based advantages, AI or robotics based advantages? See, actually these advantages, it will be in multidisciplinary. मतलब बहुत सारे डायमेंशंस में आप इसके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं. AI के एग्जांपल्स को, एडवांटेजेस को आप डिफरेंट डायमेंशंस में देख सकते हैं. ओके, डिफरेंट डायमेंशंस में देख सकते हैं. कहाँ देख सकते हैं? डू यू नो गाइस? डिफेंस में यू कैन सी, in the case of defense you can see a robotic soldier you can develop, and that robotic soldier will do war for you. Where? On battlefield. जो battlefield होता है ना, वहां पे एक robotic soldier आप बनाओ. robotic soldier किसका example होगा? It will the part of AI, और वो आपकी country की safety करेगा. Okay, this is the one. इसके अलावा देखो, you people can use the AI in medical sector, just like small robots, छोटा सा आप ले लो, है ना, और बॉडी के अंदर भेज दो. That is called tiny robots. And through the help of tiny robots, you can screen your entire body. अब जैसे आपकी बॉडी में कहीं कोई कैंसर सेल्स तो नहीं बन रहे, आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टाइनी रोबोट्स मींस दोस छोटे से रोबोट, बहुत छोटे से रोबोट्स होते हैं जो म्यूएम और नैनोमीटर साइजेस के होते हैं. दे विल गो इनसाइड योर बॉडी. फाइन, दे विल गो इनसाइड योर बॉडी और बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी को स्क्रीन कर सकते हैं. अगर आपकी बॉडी में देयर हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, मान लो अचानक कोई म्यूटेशन हो गया, कोई जेनेटिक चेंजेस हो गए, एंड योर बॉडी हैव अ व्हाट, सम कैंसरस फॉर्मेशन स्टार्ट. तो उस कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस टाइप ऑफ सेंसर्स जो टाइनी रोबोट्स बोल रहा हूं, दे विल डिटेक्ट इट. ओके, दे विल डिटेक्ट इट. फाइन, अपार्ट ऑफ दिस गाइस, इतना ही नहीं, थ्रू द हेल्प ऑफ टाइनी रोबोट्स अपनी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग्स हो जाती है ना, आर्टरीज वगैरह में दोस क्लॉटिंग हैपन, फॉर दैट पर्पसेस यू पीपल आर गोइंग फॉर एंजियोप्लास्टिस या बाईपास सर्जरी कराते हो. अगर यू विल नॉट गो फॉर इट, सो आपको क्या हो जाता है, आपको सुना होगा हार्ट अटैक टाइप की प्रॉब्लम होती है. तो वो जो क्लॉटिंग आर्टरीज वगैरह के अंदर होती है ना, फॉर दैट क्लीनिंग,
For that cleaning, you people can also use the tiny robots. So tiny robots is an example of AI robotics. The one side, it will do the entire screening of your body. So we'll watch any problem is going to generate inside your body or not. And a part of this, guys, the another dimension it, okay, another dimension it, we can remove blood clotting. Okay, we can remove blood clotting. So another point, we can remove blood clotting. Okay everyone, fine. इसके अलावा अगर you will go into the AI, अब जैसे बहुत सारे आपके पास chatbots होते हैं, chatbots, you know chatbots, sometime you people will go on any websites, तो वेबसाइट से पॉप अप करके एक चैटबोट्स निकल आता है और चैटबोट्स पे लिखा होता है भैया हाउ आई कैन असिस्ट यू. Then you ask, भाई मुझे ये चाहिए, this type of facility I want it. So okay, what you, अब just suppose I want to buy this pen. तो और इस पेन वाला जो कंपनी है उसके वेबसाइट पे जा रहा हूँ, हो सकता है वो वेबसाइट मुझे एआई की एक सुविधा प्रदान करता हो, फैसिलिटी प्रदान करता हो और उस फैसिलिटी को बोला चैटबोट फैसिलिटी. और चैटबोट फैसिलिटी इट इज द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग जिसको हम चैटबोट्स बोलते हैं. ओके, इट विल कम फ्रॉम द वेबसाइट एंड विल डू ऑल द क्वेरीज विथ मी कि भाई गुड इवनिंग, हाउ आई कैन असिस्ट यू. I will say just I am interested to buy this pen. Okay, so I damage this pen, I want to buy the another pen. तो वो मुझसे पूछता है where you want to buy, आप कहाँ रहते हैं, in which area you are here. So सब कुछ पूछना, कहता है अच्छा आप यहाँ चले जाओ in this nearby. I say I am staying in Noida, तो वो बोलेगा अच्छा एक काम करो आप, you go in the Lakshmi Nagar area, it's a nearby area where have this pen which is available, so you can go and you can buy it. तो मैं वहाँ जाऊँगा खरीद लूँगा. तो ये this type of facility वेबसाइट्स पर कोई कंपनी देती है, दैट इज काइंड ऑफ चैटबोट्स. मेनी ऑफ चैटबोट्स यू पीपल कैन सी देयर गाइस. ओके, आप यूजलेस चैटबोट्स आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग फॉर इट, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एआई. फाइन, आपको क्या दिख रहा है? देयर आर मेनी एप्लीकेशंस you people can see through the help of AI, those are available. Okay, fine. अब जैसे you want to make any test, आप जैसे प्रीलिम्स की कॉपी चेक करना चाहते हो, यू वांट टू ऑर्गेनाइज एनी टेस्ट, यू वांट टू गो फॉर कॉपी चेक करना चाहते हो मेंस की, तो थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ऑल्सो डू इट एंड द मशीन विल डू द इक्वल परफॉर्मेंस लाइक टू ह्यूमन बीइंग. ओके, उसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट. बट उस लेवल पर वी विल गो इनटू द चैप्टर डिस्कशन जब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अंडर एआई. हियर यू जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेजेस इन द जनरल पर्सपेक्टिव थ्रू एआई हैव, एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल दैट विल बी एनफ. फाइन, व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस? आप देखो ना, द वन डिसएडवांटेजेस क्या होगा? इफ अ मशीन विल स्टार्ट टू डू ऑल द वर्क, तो ह्यूमन लेबर क्या होगा? प्रोहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा. ओके, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी. तो सम हाउ डिसएडवांटेजेस, प्रोहिबिटिव लेबर. ओके, सो ह्यूमन लेबर वर्क विल स्टॉप, एक मशीन होगा और वो रिस्पॉन्स देने लगेगा. और यू पीपल नो वेरी वेल, जो मशीन जो रिस्पॉन्स देता है दैट इज मोर एफिशिएंट. ओके, यहाँ पर जो वर्क होता है, ठीक है, यहाँ पर मोर एफिशिएंट होता है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कॉन्फिडेंस लेवल विल डाउन. यार हमसे अच्छा तो मशीन काम करता है, बल्कि वो मशीन आपने बनाया बट परफॉर्मेंस वगैरह में देखो आपसे बेहतर काम करने लगा. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो द अनदर वन, द कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हैपन, दोज यू विल सफर गाइस. ओके, रूट लेवल पर. सो दिस टाइप मोटिवेशन लेवल आपका काफी कम होगा कहीं ना कहीं. द न्यू जनरेशन विल मोर करप्ट. यार कुछ करने को नहीं है तो क्या करेंगे? अब ड्यूरिंग द कोरोना क्या हुआ? मेनी पीपल हैव लॉस्ट द व्हाट अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटी खत्म है. अब यहाँ पर लोगों को क्या देखा? द गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अभी भी आ रही है. सो दिस इज द रीजन गाइस, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. और अगर गवर्नमेंट जॉब में पीपल विल इंट्रोड्यूस द एआई, वहां भी नौकरियां कम हो गई, तो आप मुझे बताओ कहां जाओगे? सो दिस इज द वे. अनएम्प्लॉयमेंट टाइप आप बोल सकते हैं. फाइन, प्रोबेटिव लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट होगा. फाइन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी कॉमन. तो व्हाट यू कैन सी हियर, आपको क्या दिख रहा है? एडवांटेजेस एंड सेकंड साइड डिसएडवांटेजेस. ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो थोड़ा सा इट इज एनफ फॉर योर ब्रीफ. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस एआई एंड रोबोटिक्स विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स. फाइन, नाउ now we will go into the another dimension. What about the another dimension? You see here guys. So AI and robotics, advantages and disadvantages, clear. Now we will go into the discussion of nanotechnology. Okay, you come into the discussion of nanotechnology.
nanotechnology. Further here I can tell you nanotechnology have advantages. So one side have advantages and the other side have disadvantages. So one side have advantages, another side have a disadvantages. Yeah, that is also right सर्वेश कि अगर हम AI का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, मानव को ख़त्म कर सकते हैं. अगर आपने फ्यू मूवी देखा हो, जैसे रोबोट देखा हो, जैसे 2.0 देखा हो, जैसे रावण देखा हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड, टर्मिनेटर देखा हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ, अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ा बदल गई, बाय मिस्टेक देयर इज सम फॉल्ट हैपन, तो ये पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है. सो इन दैट वे हियर हैव अ पॉजिटिव एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, तो ठीक है, मिसयूज ऑफ भी हो सकता है. फाइन, दिस इज ओके. सर्विस, यू आर राइट कि मास लेवल डिस्ट्रक्शंस भी हो सकता है अगर समहाउ द प्रॉब्लम इवन जो भी प्रोग्रामिंग है अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गया तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. Okay, now nanotechnology. Nanotechnology is studied at the small level. Okay, and performance, accuracy, reliability में काफ़ी better चीज़ें होती हैं. That all are coming under nanotechnology. मैं आपको बताता हूँ, there are few developments those happen in nanotechnology, and then I will tell you about these advantages. देखो, एक टर्म होता है that is called graphene. Sorry, पहले बात करेंगे fullerene. Second is carbon nanotube. Second is carbon nanotube, and third is graphenes. You guys, these all the materials, these all are materials, and these all the materials are developed through the help of nanotechnology. यानी nanotechnology की मदद से कुछ ऐसी materials हैं जो लैब में बनाए गए, लैबोरेटरीज में बनाए गए. ओके, और इन मटेरियल्स को जो हमने लेबोरेटरीज में बनाया है, इनकी मदद से इसके हमने एप्लीकेशंस यूज करने शुरू किए हैं. एंड दीज आर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स. अभी तो इनके एप्लीकेशंस पता चले, बट फॉर नेक्स्ट सेंचुरी मींस आई कैन टेल यू फॉर 21st सेंचुरी के लिए ये एक फ्यूचर है. दिस इज अ फ्यूचर जहां फुलरीन, कार्बन नैनोट्यूब और ग्राफीन की मदद से वी कैन ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन. कहाँ? हर सेक्टर में. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो जो रिवॉल्यूशंस हम ला सकते हैं उस केसेस में कौन से एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. कहने का सीधा मतलब है, अगर मैं फुलरीन, कार्बन नैनोट्यूब एंड ग्राफीन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊं तो अल्टीमेटली दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, आर डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो अब फुलरीन क्या होता है, CNT क्या होता है और ग्राफीन क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. इट इज नॉट पॉसिबल and you people know very well inside your syllabus already AI, robotics, these all the topics are given in your syllabus. So during the discussion of detailed studies I will go and describe it. This is the first unit, those I am discussing you unit number 7 in this entire 10 units, and this is the lengthiest one among all. पता है पूरे के पूरे syllabus में, मतलब entire GS paper 3 सबसे ज़्यादा टाइम एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट 25 to 30% वेटेज सबसे ज़्यादा जो है इसी यूनिट में होता है, यूनिट नंबर 7, और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यूनिट भी है. ओके, 7, 8, 9 उतना ज़्यादा दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग जितना आपको इस यूनिट्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है. ओके, बिकॉज विद इन अ वन यूनिट हैव अ मेनी डायमेंशंस. बाकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सिर्फ बायोलॉजी है, सिर्फ फिजिक्स है, सिर्फ केमिस्ट्री है. यहाँ पर देयर आर मेनी टर्मिनोलॉजीज, मेनी टेक्नोलॉजीज आर दोस इंट्रोड्यूस्ड हियर. Okay, अब just Gargi asked me, sir, what is the nanotechnology? देखो, it's very decent question. इसका मतलब अभी बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है. I will simplify what is the nanotechnology. वो चीज़ जो छोटे करने के बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है. ओके, और छोटा कौन करता है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन वेट. यानी आई कैन टेल यू, अगर एनीबडी आस्क मी इन द सिंपल वे, सर यू जस्ट डिफाइन द नैनो टेक्नोलॉजी एज गार्गी आस्क मी, तो गार्गी बेटा मैं ये बोलूंगा है ना कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल साइजेस. सुनना, मैं फ्यू वर्ड्स में डिफाइन करता हूँ व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी. इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्नोलॉजी of small sizes, those enhance performance, accuracy and reliability.
परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन डिफरेंट डिसिप्लिन। तो ये क्या हुआ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो छोटे साइज पर ही बन सकती है, और छोटे साइज पे बनने के बाद जब हम उससे कोई परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी देखते हैं तो वो बहुत ही अलग होती है और बहुत ही बड़े लेवल पर होती है। अब जैसे ये एग्जांपल्स है ना, फुल रिंग, CNTs और ग्राफीन्स, ये सब किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने और इनके एप्लीकेशंस बहुत बड़े बड़े लेवल पर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज फॉर टुडे क्लास बिकॉज इट्स वेरी सिंपल वे एज गार्गी आस्क्ड मी, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज इट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। अगेन आई रिपीट, इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल साइज, दोज enhance performance, accuracy and reliability in different disciplines. अब वो डिसिप्लिन्स क्या है, दैट आई एम टेलिंग यू हियर थ्रू द हेल्प ऑफ दीस एग्जांपल्स। यानी ये जो तीनों चीजें आप देख रहे हो ना, फुलरीन, ग्राफीन, नैनो ट्यूब्स, ये सब के सब छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनाए गए, और ये तीनों के तीनों ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अगर मैं इन्हीं के एप्लीकेशन बता दूं, इनके यूजेस और डिसएडवांटेजेस बता दूं, तो फाइनली यू विल गेट व्हाट अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ओके बच्चा, वेरी गुड, है ना। व्हेन एनीबॉडी आस्क्स मी अ क्वेरीज, ओके, और मैं उसका आंसर देता हूं तो काइंडली गिव मी रिस्पॉन्स, ओके सर, गुड सर, आई अंडरस्टूड, ओके फाइन। सो इन दैट वे इट विल लुक लाइक दैट यस वी आर कनेक्टिंग टुगेदर। नहीं तो मैं आपके क्वेश्चन को देखकर फिर आंसर क्यों दे रहा हूं अगर यू आर नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्स अगेन, फाइन। और यू रिमेंबर गाइस, जो रिलेवेंट होगा, फाइन। वैसे तो आई थिंक आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल आंसर्स, बट कुछ खुराफाती क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आई विल टेल यू फालतू बात है। अगर जेन्युइन होगा तो आई विल डिस्कस विद यू, फाइन। Oh, so here I will remove it. Okay, guys. Now you come about advantages and disadvantages. So come here, advantages and disadvantages. So what will come in advantages and disadvantages? सुनना दोस्त, पता है आप फुलरीन को ले लो, फुलरीन की मदद से आप क्या कर सकते हो, सनस्क्रीन लोशन की तरह यूज कर सकते हो। Means small size of fullerenes you can use in the cosmetics, so we can use it as a cosmetics में। And what about the cosmetics में it will do? It will prevent cell toxicity. It will prevent cell toxicity. Okay, prevent against ultraviolet radiations. Prevent against अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगर यू विल डू, जैसे यू पीपल आर यूजिंग द सनस्क्रीन लोशन ना, ठीक है, एनेबलिंग यूनिक एप्लीकेशंस। अच्छा मैं भूमिका समझा नहीं, व्हाट इज दिस एनेबलिंग द यूनिक एप्लीकेशंस, आप किस रेफरेंस में यू आर आस्किंग मी, ओके, मेंशन करना, तब तक मैं इधर हूँ, फाइन। सो कॉस्मेटिक्स में वी कैन यूज द फुलरीन्स। तो इससे क्या होगा, आप बॉडी के सेल पे लगाओ, बॉडी पर लगाओ एज अ सनस्क्रीन लोशंस, ओके। अब इसको अल्ट्रावायलेट लाइट्स में अगर जाओगे तो इट विल नॉट हार्म, फाइन, नॉट हार्म, द वन पॉइंट। सेकेंड वन, जैसे होता है ना, समय के साथ साथ हमें झुर्रियाँ बढ़ती हैं और स्किन रिंकल्स हो जाती हैं, धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं, स्किन खराब होने लगती हैं, धीरे धीरे चीज़ें लटक आएंगी, एक दिन वो भी आएगा, फाइन। बट यू जस्ट सी गाइस इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वहाँ पे सेल की टॉक्सिसिटी और सेल की लाइफ जो होती है ना, वो बचाने का काम भी करता है। तो योर सेल एंड एवरीथिंग विल बी मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबा चलते हैं। अपार्ट ऑफ दिस गाइस, फिलहाल बहुत सारी चीज़ें, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थ्री आप ट्रांजिस्टर्स में इनका यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिस्टर्स। So we can use fullerene, CNT and graphenes all for the development of transistors. Okay, fine. In many fields, you are right. So transistors. So ultimately, guys, इनसे आप ट्रांजिस्टर बना सकते हो। ट्रांजिस्टर्स कहाँ होते हैं? ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और जितना ज़्यादा अच्छा ट्रांजिस्टर होगा उतना अच्छा कंप्यूटर की स्पीड होगी, कंप्यूटर फास्ट होगा। तो हियर आई कैन टेल यू टू इम्प्रूव प्रोसेसर, जैसे यू पीपल नो ना i3, i5, i7। तो अगर आप दिस फुलरीन, CNT, ग्राफीन से बने अगर ट्रांजिस्टर बनाओगे, तो वो आज किसका बना ट्रांजिस्टर वी पीपल आर यूजिंग, फाइन, वी पीपल आर यूजिंग सिलिका। टुडे वी गाइस आर यूजिंग द सिलिका मेड ट्रांजिस्टर, समझना। बट कमिंग फ्यूचर में फुलरीन, CNT एंड ग्राफीन मेड ट्रांजिस्टर अगर यूज करोगे तो इससे क्या होगा, इससे कंप्यूटर की स्पीड काफी बढ़ जाएगी, प्रोसेसर्स काफी अच्छे हो जाएंगे, ओके, प्रोसेसर्स काफी अच्छे हो जाएंगे।
फाइन. अ पार्ट ऑफ दिस, डू यू नो गाइज अबाउट द फोटोवोल्टाइक? जानते हो? सोलर पैनल, सोलर पैनल, सोलर पैनल. सोलर पैनल जो होता है उसको हम कहते हैं पीवी. पीवी मीन्स फोटोवोल्टाइक्स. फाइन. आई नीड सम स्पेस, मैं कुछ हटाता हूँ एंड देन आई विल राइट हियर. उसको कहते हैं दोस्त, दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक्स. दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक्स. That's roadside. I hope you people have seen solar panel. What the solar panel is doing? Solar panel receive the sunlights. और उसी के नीचे होता है एक बैटरी. वो सनलाइट जब रिसीव करता है सोलर पैनल तो उसी से चल के नीचे बैटरी चार्ज होती है. ओके, और उसी बैटरी से आप लाइट जलाते हो. फाइन एवरीबॉडी. ओके, सो फोटोवोल्टाइक्स भी जो होता है वो सिलिका का बना होता है. जैसे ट्रांजिस्टर्स में सिलिका होते हैं, फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल में भी सिलिका होते हैं. वी पीपल कैन यूज फ्लोरीन, CNT एंड ग्राफीन इन प्लेस ऑफ सिलिका. और पता है ग्राफीन, फ्लोरीन और CNT बेस्ड अगर फोटोवोल्टाइक्स में यू पीपल विल यूज इट तो इसका परफॉर्मेंस बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है. अगर सिलिका मेड फोटोवोल्टाइक्स किसी बैटरी को चार्ज होने में टेकिंग 8 to 10 आवर्स, पूरा दिन लगा देता है, तो दिस मेड फ्लोरीन, कार्बन एंड ट्यूब ग्राफीन में 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाता है. सोचो कितना हैवी बैटरी को अब तुम चार्ज कर सकते हो. सो इन दैट वे गाइस, थ्रू द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी यू कैन एनहांस द एक्टिविटी. आजकल जानते हो एक बड़े क्वालिटी वाला एक टेलीविजन आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड QLED टीवी. यू हर्ड QLED? बिकॉज आई एम टोटली करंट अपडेट्स. मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ. So during the discussion I will do all the current updation also. जब भी कोई टॉपिक चल रहा होगा. Q को बोलते हैं क्वांटम LED टीवी. What is QLED? QLED is the quantum LED टीवी बोलते हैं दोस्त. ओके, और क्वांटम LED टेलीविजन में हम एक्चुअल में what we people are using, यहाँ पे हम क्वांटम डॉट्स को यूज करते हैं. What you guys are using? क्वांटम डॉट्स. और क्वांटम डॉट्स को इस टेलीविजन में यूज करने के बाद ये स्क्रीन बनती है क्वांटम LED स्क्रीन. और क्वांटम LED स्क्रीन टुडे इट इज द बेस्ट स्क्रीन इन द इंडियन मार्केट. तो आज इंडिया में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट स्क्रीन कौन सा है? सो दिस इज QLED. QLED बोला तो क्वांटम LED. क्वांटम LED इज द बेस्ट स्क्रीन जो आज सबसे बेस्ट स्क्रीन पूरे मार्केट में है. ओके एवरीबॉडी, सो दिस इज क्वांटम डॉट LED. यू रिमेंबर इट. अब आप देखो, दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस. यहीं रोकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे तो मैं 1 घंटे एडवांटेजेस बोलता जाऊंगा. आई जस्ट सिंप्लीफाई दीज ऑल द टर्मिनोलॉजीज in front of you. Reason, these all the entire topics are given in unit number 7. Those I will go in the detail. प्रॉब्लम क्या है, पहला ही टॉपिक आपका जो है वो इस तरह का टॉपिक हो गया कि ह्यूमन लाइफ में साइंस टेक का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो पूरा ही कवर करना पड़ रहा है. द नेचर ऑफ टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आई विल डिस्कस इन डिटेल. Ayushi, definitely fullerenes, CNT, everything will bring a revolution and some positive advantages I have given you. Negative what you can do guys, nano bumps बना सकते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी में वी कैन डेवलप नैनो बम्प्स. नैनो बम्प्स आर व्हाट? दोस वायरस, जस्ट लाइक कोरोना वायरस यू कैन डेवलप. Coronavirus you can develop, and those coronavirus you can develop with the help of that coronavirus. पता आप क्या कर सकते हो? उस कोरोना वायरस को लैब में बनाकर पूरी दुनिया को परेशान कर सकते हो. It will be a disadvantage of nanotechnology. As I got some application about gene therapy. Okay, but gene therapy is what? Gene therapy is the advantages of nanotechnology. Gene therapy is an advantage of nanotechnology. Any defected gene we can replace from your body and integrate normal gene. इस तरह की चीजें भी through the help of nanotechnology is become possible. तो बात करेंगे फाइन जब हम जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी पर. बायोटेक्नोलॉजी में एटलीस्ट 4-5 लेक्चर लूंगा, कम से कम 10 घंटे का लेक्चर है. बोला ना, दिस होल एटलीस्ट 8 आवर्स का लेक्चर है, 7-8 आवर्स तो कम से कम. इट्स वेरी लेंथी टॉपिक. ओके, सो आर्या यू आर राइट, वी कैन गो फॉर जीन थेरेपी बट इट्स अ एप्लीकेशन पार्ट्स. ओके, तो मुझे यहीं रुकने दो क्योंकि आज मुझे फर्स्ट वाला पार्ट खत्म करना है. ओके एवरीवन, यू टेल मी यू आर गेटिंग एवरीथिंग और नॉट. यू गाइज आर गेटिंग एवरीथिंग और नॉट जो हम पढ़ रहे हैं. ओके, एंड इंटरेस्ट शुड कम इन योर प्रिपरेशन, इट इज मस्ट. हेल्थ रिस्क भूमिका, हेल्थ रिस्क किस तरह के हेल्थ रिस्क यू आर आस्किंग मी. तो अगर हेल्थ रिस्क है बच्चा तो दैट विल डेफिनेटली हैव अ डिसएडवांटेजेस ना, दोस आई एम टेलिंग यू. तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ पैरेलली कमिंग, बोथ आर पैरेलली कमिंग. ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं. ओके फाइन. अच्छा, आफ्टर नैनो टेक्नोलॉजी
जस्ट एक दो और बचा है। अरे हाँ, वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जस्ट लाइक हु मेंशन, आर्या मेंशन सर जीन थेरेपी वी कैन डू। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ और यहीं पे जान लो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो यू पीपल लिसन, ठीक है, जो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो ना, हम बायोटेक्नोलॉजी ही करने जा रहे हैं। देखो ये देखो, दिस इज व्हाट nanotechnology over. अब now we will go into the discussion of now we will go into the discussion of biotechnology, ठीक है। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी बताता हूँ, पहले कुछ चीजें हैं that I will connect with the nanotechnology and then I will go into the discussion of advantages and disadvantages. Okay everyone, fine. You just come here. पहले you just listen what is the biotechnology. Biotechnology is those जहां पर we people are using living organism in technology perspective. So biology is what? Study of living beings. Biology is what? Study of living beings. और study of living beings में क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। Okay, so ultimately this is those technology where microorganism, plants and animal will use. This is those technology where microorganism, plant and animal will be used. Okay, various purposes के लिए हम इनको use करते हैं। Okay, so microorganism, plant and animal will use in technology. इसी को बोलते हैं biotechnology. अब then there have a applications. तो पहले I hope you people clear what is the biotechnology. A technology based on living beings. How you will write it? A technology based on living beings. A technology based on living beings. लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग से आगे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? ये जो यहां लिखा हुआ है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से, और याद रखना इन योर पेपर 10 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, इन योर पेपर 30 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, इन योर पेपर इससे बड़े वाले भी आते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग इतने में प्रिपरेशंस करने की, और खींचना आना चाहिए। ओके, सो मोस्टली वी विल प्रिपेयर फॉर 30। ओके, और उसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स ही बताऊंगा। करना कुछ नहीं होता, बस अगर 10 वर्ड्स में करना है तो पॉइंट्स लिख के उसका ये कॉमा 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 कर देते हैं, वो 10 वर्ड्स हो जाता है। और थोड़ा सा पॉइंट्स ना करके इनको डिफाइन इफ यू विल राइट इट तो वो 30 वर्ड्स हो जाता है, और थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं तो वो 100 वर्ड्स हो जाता है। एंड दिस इज द आर्ट दैट यू विल लर्न विथ मी, और आपको सीखना होगा। ऐसा नहीं होता दोस्त कि आप किसी टॉपिक को एक बार 10 वर्ड्स में लिखो, देन यू राइट 30 वर्ड्स, देन यू राइट 100-200 वर्ड। ऐसे कभी कर पाओगे? ऐसे तो जिंदगी भर में यू कैन नॉट डेवलप योर इंटायर नोट्स। तो कोशिश क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा 30 वर्ड से 60 वर्ड्स 50 वर्ड्स में कोशिश करो, इतने पॉइंट्स हो जाए तुम्हारे पास। एंड देन कॉमा कॉमा कर 10 वर्ड्स, डिस्क्राइब कर 100 वर्ड्स। दिस इज द आर्ट एंड दैट यू मस्ट हैव टू लर्न। तो नोट्स कितने बनाने चाहिए आपको? हर बड़े बड़े टॉपिक्स का भी सिंपल तरीके से 50 वर्ड्स का। ओके, और ये चीज आपको यू हैव टू मस्ट डेवलप, मतलब वो खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है एक टॉपिक दिया, उस पर पहले 10 वर्ड लिख रहे हैं, फिर उस पर 30 वर्ड लिख रहे हैं, फिर उस पर 100 वर्ड लिख रहे हैं। अरे पता चला कि पूरे दिन में 3 टॉपिक ही पढ़वा रहे हैं, तो दिस मच ऑफ बिग सिलेबस कैसे कवर करें? तो कोई बात नहीं ना सर, 40 ईयर्स तक देते हैं तो ठीक है, 10 साल तक नोट्स बनाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। फाइन। सो कोशिश करना नोट्स को शॉर्ट में बनाना, और उसको और शॉर्ट करने की आदत डाल लेना और बढ़ाने की आदत डाल लेना, दैट यू विल लर्न हियर, और वी पीपल विल हेल्प यू इन दिस डेवलपमेंट। कैसे करेंगे? इट्स मस्ट हियर गाइस, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? यू गाइस क्लियर? थोड़ा सुनना दोस्त, सुनना। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। शायद आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। काफी लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर देयर आर द डिफरेंट ब्रांचेस। विद इन नैनो टेक्नोलॉजी हैव डिफरेंट ब्रांचेस। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो सिस्टम है ना, नैनो इलेक्ट्रॉन, मतलब कई तरह होते हैं। उनमें नैनो टेक्नोलॉजी में एक जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नैनो सिस्टम। नैनो सिस्टम पता है? बायोटेक्नोलॉजी इज द एग्जाम्पल ऑफ नैनो सिस्टम। बायोटेक्नोलॉजी इज द एग्जाम्पल ऑफ नैनो सिस्टम। ये नैनो सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। दिस वन यू रिमेंबर गाइस। Okay, so biotechnology is an example of nano system.
पर होता क्या है, दिस बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हैव अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोप. तो किया क्या, दिस बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी बिकम एज अ सेपरेट चैप्टर, एज अ सेपरेट डायमेंशन, एज अ सेपरेट कोर्स. फाइन, बट यू रिमेंबर बायोटेक्नोलॉजी में स्मॉल लेवल ऑफ जेनेटिक स्टडीज वी आर डूइंग. स्मॉल लेवल ऑफ जेनेटिक स्टडी वी आर डूइंग. क्या आप अपनी बॉडी के एक जीन को देख सकते हो? कभी नहीं. इट इज नॉट विजिबल थ्रू योर नेकेड आई. ओके, इट इज नॉट विजिबल थ्रू योर नेकेड आई. हाँ, पर उन्हीं को छोटे लेवल पर स्टडी कर कर हम आपकी जीन थेरेपी को कर सकते हैं. इफ एनी ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स दोज आर कमिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मान लीजिए आपके मम्मा पापा इज सफरिंग विद सम डिजीज सिकल सेल एनीमिया, उनके बच्चे सिकल सेल एनीमिया, अगेन देयर ओन डिजीज सिकल सेल एनीमिया. कोई बात नहीं, यू थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यू कैन डू दिस करेक्शन और आगे की जनरेशन को बचा सकते हो. जैसे वन एग्जाम्पल समबडी हैज गिवन मी हियर अबाउट जीन थेरेपी. सो इन तरीके से कर सकते हैं हम अपने बच्चों को डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइनर बेबी मिसयूज कर सकते हैं. ओके, नेचुरल कैरेक्टर्स को वी कैन चेंज. कोई प्लांट जिस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है उसके अंदर जीन बदलकर उसकी नेचुरल आइडेंटिटी को खराब भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं यू कैन सी बायोटेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं. तो ऑर्गेनिजम्स इज नॉट गोइंग टू बी एज अ नेचुरल. हम नेचर के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं यू कैन गेट पॉजिटिव एंड यू कैन गेट एज अ नेगेटिव. बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत कुछ करते हैं. अब जैसे क्लोनिंग है दोस्त, जैसे आयुष हैज मेंशन क्लोनिंग. अब क्लोनिंग में हैव एडवांटेजेस, क्लोनिंग में हैव. एक काम करता हूं ना, आई मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. वैसे भी दिस इज द लास्ट ईयर, दिस इज द लास्ट ईयर. ओके, बायोटेक्नोलॉजी एडवांटेजेस, बायोटेक्नोलॉजी डिसएडवांटेजेस. सो बायोटेक्नोलॉजी एडवांटेजेस एंड बायोटेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज. चलो आप मुझे बोलते जाओ, व्हाट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. चलो ठीक है, मुझे मिला दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. ओके फाइन, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एज अ एडवांटेजेस. अच्छा, आप क्लोनिंग लिख रहे हो. देखो, क्लोनिंग हैव अ एडवांटेजेस एंड क्लोनिंग ऑल्सो हैव अ डिसएडवांटेजेस. दोनों जगह पर आएगा. देखो, इन विच केस क्लोनिंग इज हैव अ एडवांटेजेस. मान लो यू वांट अ सेम डिजायर्ड कैरेक्टर. कोई प्लांट है, उस वेराइटी का ही प्लांट उसी तरह का चाहिए, तो यू गो फॉर द प्लांट क्लोनिंग. प्लांट क्लोनिंग में सेम डिजायर्ड प्लांट आपको फिर मिल जाएगा. पर्पल कलर ऑफ रोज, अगेन यू विल गेट द पर्पल कलर ऑफ रोज. ये क्लोनिंग है. सो क्लोनिंग, मान लो कोई एक जर्सी काऊ है एंड दैट जर्सी काऊ इज गिविंग 60 लीटर मिल्क. ओके, क्लेश भाई थोड़ा गर्म पानी बोलना दे करना. मान लो एक जर्सी काऊ इज गिविंग 60 लीटर ऑफ मिल्क. यू टेल मी इफ आई विल मेक अ क्लोन ऑफ दैट जर्सी काऊ. Just think, if I'll develop a clone of Jersey cow, तो 60, 60, 60, 180 लीटर दूर मिल्क अब यू कैन गेट इट और नॉट, वहां आपको बेनिफिट मिल रहा है. लेकिन वहीं आपको बताऊं, अगर एवरीवेयर हैव अ क्लोनिंग क्लोनिंग एंड क्लोनिंग, सो पता है दुनिया में क्या होगा, डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगे. और अगर डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होंगे. इवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि डिफरेंसेस होना चाहिए. जेनेटिक डिफरेंसेस आर मस्ट, बट इन दिस केस जेनेटिक डिफरेंसेस विल नॉट कम. जैसे एक बार एक लड़के ने मुझसे कहा, सर हम अक्सर बात होती है कि दिस लॉइन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज. लॉइन का नंबर बहुत कम हो रहा है, लॉइन खत्म हो रहा है, तो बेटर वी डू क्लोनिंग ऑफ दिस लॉइन, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन, बढ़ा देते हैं. आप मुझे एक बात बताओ, अगर यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन्स, तो सारा का सारा वही लाइन बना ना, जो कि द सेम जेनेटिक कैरेक्टर वाला लाइन बना ना. वो जेनेटिक डिफरेंस थोड़ी ना है. तो सारे के सारे 10 लाइन के 10 क्लोन को वी पीपल विल कंसीडर एज अ वन लाइन. दैट विल नॉट बी एज अ 10. आपको नंबर में दिख रहा है, लेकिन वो है एक, क्योंकि 10 के अंदर सेम जीन्स हैं. नहीं तो बताओ दुनिया में कभी एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड होते? कभी नहीं होते. दोस प्लांट्स एंड एनिमल्स नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज. आप उसे मल्टीप्लाई करो, उसकी क्लोनिंग बना लो, 1000 नंबर कर लो. ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त. हमेशा क्या होता है, जेनेटिक डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस, डार्विन ने बोला था हैव अ कंपटीशन, एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन हैव अ इवोल्यूशंस. आप खुद सोचो, यू मी एवरीबडी आर सेम 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 और सेम और सेम, सब कुछ एक्सप्रेशन वाइज एंड जेनेटिक कैरेक्टर वाइज. इफ वी ऑल पीपल विल 100% सेम,
इफ वी ऑल पीपल विल बी 100% सेम, तो यहां पर क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। तो कौन कंपटीशन नहीं होगा, तो इवोल्यूशन कैसे होगा, नई चीज नहीं आएगी। दैट जेनेटिक कैरेक्टर अगेन फ्रॉम द सेम जेनेटिक कैरेक्टर, इवोल्यूशन नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन वन साइड क्लोन हैव अ पॉजिटिव, एक जर्सी काऊ के लिए इज अ पॉजिटिव, बट इवोल्यूशन के लिए इट हैज अ नेगेटिव। फॉर इवोल्यूशन इट इज व्हाट, इवोल्यूशन में क्या है, ये नेगेटिव है। आप चीजों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब जैसे आयुषी ने बड़े बड़े नाम बोले, rDNA टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और थ्रू द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी कैन डू द जेनेटिक ट्रांसफर एंड ऑल। अच्छा, क्लोन हैव अ शॉर्ट लाइफ, ऐसा होता है क्या? नितिश, इट इज नॉट लाइक इट। आई नो व्हाई यू आर आस्किंग मी, क्योंकि डॉली के केस में ऐसा हुआ था, वो निमोनिया से मर गई थी, और इंडिया में दैट क्लोन इवन डेवलप, दैट वाज अ बफेलो क्लोन, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो बाई लकली भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोन की लाइफ कम होती है। विल द ब्रेन वर्क इन द सिंक्रोनाइज आफ्टर क्लोनिंग? ओके, सी शशांक, व्हाई यू आर आस्किंग मी, आई डोंट नो। ब्रेन क्लोन के हिसाब से डेवलप नहीं होता है। ब्रेन इन आवर लाइफ, जो हमारे मम्मा पापा, हमारे टीचर, हमें चीजें दी जाती हैं, उससे डेवलप होता है। अब यू जस्ट टेल मी, यू एंड योर ब्रदर्स आर द सेम कॉपी, ट्विंस हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो, यू आर लिसनिंग माई क्लास, और तुम्हारा भाई घर पे बैठा है, तो क्या वो बिना सुने ही मुझे वो चीजों को सीख रहा है? कभी नहीं। ब्रेन इज अ व्हाट, इट्स अ नीड ऑफ एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता है। नॉलेज, एक्सपीरियंस्ड, ये आपको एक्सरसाइज से आती है, ये बिना ऐसे नहीं आ जाती है। ओके फाइन। सो ये क्या था, फ्रेगेटेड, पता नहीं कुछ, या तो मैंने कुछ गलती की है। ओके, शायद। ओके, so advantage and disadvantages. Even biotech have DNA fingerprinting, you people listen it. DNA fingerprinting से क्या advantages हैं? You can identify what? In the case of forensic sciences, you can identify a criminals. माँ बाप से बच्चे की पहचान कर सकते हो। ओके, अब मान लो किसी जगह पे 5 बच्चे हो गए हॉस्पिटल्स में, सुबह उठा, पता चला क्या हुआ कि 2 पेरेंट्स एक बच्चे के लिए लड़ने लगे, कोई अपनी शक्ल नहीं देख रहा, सबको खूबसूरत वाला बच्चा चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं, यू कैन गो थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड यू कैन आइडेंटिफाई ये खूबसूरत सा बच्चा किस वाले माँ बाप का है। ओके, या जो भी है, फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। सो मतलब इस तरह की चीजों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल हेल्पफुल टू यू। एग्रीकल्चर इश्यूज भी हो सकता है, आई एग्रीड। अब हम थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं तो पता चलेगा बायोटेक आज खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टूड गाइस। ओके, इट्स गुड यू पीपल आर एंजॉइंग इट, कि आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, एंड इट इज लुकिंग लाइक दैट रियली आई एम टेकिंग योर क्लास। बस वर्ड्स आपके जो आपको दीपाली, आई टोल्ड यू बेटा, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेफिनेटली विल बी हियर। ओके फाइन। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, दैट आई टोल्ड यू गाइस, वी कैन मिस यूज दिस। बायोलॉजिकल वेपन्स यू कैन डेवलप, बायोलॉजिकल वेपन्स वी कैन डेवलप, बायो वेपन्स बना सकते हैं। इवोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, अगर यू विल डेवलप द मल्टीपल कॉपी ऑफ क्लोन्स, वी कैन स्टॉप इवोल्यूशन, नई जनरेशन आनी बंद हो जाएगी, दे विल नॉट इम्प्रूव कैरेक्टर्स, ये सब भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। इस तरीके से यू अंडरस्टूड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। फाइन, मेडिसिन में ऐसा कुछ बताना नहीं है। अब यू कम हियर, अब आप मुझे बताओ, आई थिंक सो कि अब तो आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, इफ एनीबडी आस्क यू, if anybody asks you yeah in your interview, okay, your examiner will ask you, ये बताओ how technology affects development of human life, तो कैसे सोचोगे? सर जानते हो, technology is a human made. अब you just listen, I am going to conclude everything. Technology is just a human made, okay, entirely developed by human being, for human betterment, या ह्यूमन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ यू कैन कॉल इट, या वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऐसे कहोगे। फिर बोलोगे इन एवरी सेक्टर्स, ओके, हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो जस्ट यू क्लोज योर आइज और इस पेज की तरफ ध्यान देना, तो मैं दिख रहा होगा, हाँ, एनर्जी में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हाँ, स्पेस में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, आईसीटी और डिफेंस इज समहाउ कनेक्टिंग विद द, जैसे मुझे दिखता है ऐसे आपको देखना चाहिए, और आप बोलते रहना, और सामने एग्जामिनर का चेहरा देखते रहना, यू विल गेट इट। नॉलेज के लिए बैठो, ओके, मजा अपने आप आएगा, सिलेक्शन खुद हो जाएगा, पर थोड़ा लिखना भी है। ओके दोस्त, जो कि इट इज लाइक इट कि टुडे अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जैसे आउट क्लास सब कुछ साफ, इट शुड बी नॉट लाइक इट। ओके, बट अगेन आई विल टेल यू गाइज, दिस इंटायर डिस्कशन दोज आई एम डूइंग,
ओके, दोज आई हैव डन इट, जितना भी मैंने बताया ये सब आपको अभी आगे इंटायर डिस्कशन में दिस ऑल टॉपिक्स वेलकम, और बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। 30 आवर्स बहुत होता है। ओके, सो कितनी चीज़ों को एक एक को लेकर आई विल गो, मतलब एक एक चीज़ को ढंग से करेंगे। फाइन। अच्छा, एट लास्ट वन, टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ्स। ओके, वैसे भी इफ आई आस्क यू गाइज व्हाट अबाउट द डायमेंशंस, स्टडी में कितने डायमेंशंस होते हैं वो मुझे बताना है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्लास। ओके, हाउ मेनी डायमेंशंस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन द बिगनिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर हम लोग इसका आंसर पूरा करेंगे। आई विल डू द डिक्टेशंस, यू पीपल विल राइट इट। ओके फाइन, हाउ मेनी डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस होते हैं जब हम किसी भी आंसर्स को लिख रहे होते हैं या किसी भी थॉट को सोच रहे होते हैं? सोशल डायमेंशन, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी को ले लो, टेक्नोलॉजी से व्हाट अबाउट द सोसाइटी इम्पैक्ट, ई गवर्नेंस। आज बताओ, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी क्लासेस, ये ऑनलाइन ही तो है, टेक्नोलॉजी क्लासेस है, एंड दिस टाइम ड्यूरिंग द कोरोना इम्पैक्ट, ओके, यू पीपल आर लिसनिंग मी, ये क्या है? ये क्या है दोस्त? सोशल इम्पैक्ट है। स्टिल सोशल गैदरिंग इज गोइंग ऑन। ये लाइट्स जो है, इट इज अ एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ लाइट सोशल गैदरिंग इज गोइंग ऑन। हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये सब सोशल गैदरिंग है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप मुझे बताओ, मैं टेक्नोलॉजी को आई एम जस्ट टू कनेक्टिंग विद द मेनी डायमेंशंस, और देखो ना, इकोनॉमिकल डायमेंशन से भी कनेक्ट होता है। किसी देश की इकोनॉमी भी होती है। अगर यू विल डेवलप सम टेक्नोलॉजी एंड यू विल गो फॉर इट्स पेटेंट, तो हु विल गेट दिस बेनिफिट? यू, एंड बिकॉज ऑफ यू योर नेशन। दूसरा बेनिफिट हुआ। तीसरा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। यू कैन डेवलप अ टेक्नोलॉजी दैट विल रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा, उससे आप इन्वायरमेंटल कंसर्न भी कर सकते हो। अपार्ट ऑफ दिस गाइस, मेडिकल कंसर्न भी कर सकते हो। इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द ह्यूमन हेल्थ। एंड अनदर वन गाइस, इसके पॉलिटिकल डायमेंशन भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रमोट दिस टाइप ऑफ थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस। चलो, अब आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल दे दो और इन चीजों को समझा दो। बोला ना, विदाउट एग्जाम्पल्स, okay, without examples concepts are not possible to understand. So I will give you example, and this is the example, those best example I use everywhere. यहाँ भी वही दूंगा जिनसे all the dimensions you can connect very easily. गार्गी डेफिनेटली बचा, ये सब डिटेल में आने वाला है। आप देखो ना, योर सिलेबस में बायोटेक ऑलरेडी सेपरेट चैप्टर है, एनर्जी ऑलरेडी सेपरेट चैप्टर है, ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑलरेडी सेपरेट चैप्टर है, एआई रोबोटिक्स ऑलरेडी सेपरेट चैप्टर है। तो ऑलरेडी एवरीथिंग विल कम। तभी मैंने बोला अभी शुरुआत में यू जस्ट लिसन में, अभी मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, अभी आप जो लिख सकते हैं आप लिखते रहे। ओके, डिक्टेशन वाला तो टॉपिक ऑलरेडी इट विल कम इन डिटेल। ये टॉपिक्स जो है जब इसके अंदर जाऊंगा, ये जो पॉइंट्स हैं, देन आई विल डिक्टेट। ओके गार्गी, आई होप यू अंडरस्टूड, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, ये मत सोचना कि 1 घंटे मुझे सुनने के बाद यू विल क्रैक योर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। नहीं दोस्त, अभी पूरा सुनना है। डोंट बी हरी, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूं, तो यू ऑल्सो भी, है ना, कीप योर पेशेंस। ओके, धीरे धीरे चलेंगे। फाइन। अच्छा, एग्जाम्पल और फिर ये वाला पार्ट खत्म, एंड देन सम डिक्टेशंस। ओके एवरीवन, फाइन। 1, I will give you example of LED bulb. I will give you example of LED bulb. Okay, what will come in the example of LED bulb? See, because of LED lights. Okay, मैंने एक पकड़ा और उससे I just to going to connect entire thing. मैंने कहा देख भाई, LED bulb है, okay, LED bulb से because LED bulb having a lights, और नाइट में भी क्लासेस हो सकती हैं, नाइट्स में भी वी कैन डू मीटिंग्स, यस और नो? So because of LED have a social gathering or not? Yes sir, I can understand and I can connect it. Okay everybody, fine. Second, ये बताओ LED is what? एक बार पैसा लगता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, but you people know very well, government is providing you LED at some very cheap price under some government scheme. शायद सुना होगा उजाला, बात करेंगे अभी पॉलिटिकल इश्यूज में, आई विल डिस्कस उजाला। ओके एवरीवन, फाइन। तो आप मुझे बताओ, एक बार अगर आपने एलईडी खरीद लिया, सो व्हाट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल रिड्यूस गाइस। जो 100 वाट गोल वाला इनकंडेंसेंट बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था ना, यहाँ 10 वाट 12 वाट के एलईडी से आपको उतनी ही लाइट मिलती है। तो करीब आप 88 वाट इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हो, नहीं बचा रहे हो, इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिकल बेनिफिट।
because of LED. What about the environmental benefit? See guys, those electricity we are generating, it is because of burning of coal. Or burning of coal से what happen? Pollution happen. Burning of coal से what happen? Pollution happen. You tell me, LED consume very less power. So very less power या very less electricity means very less burning of coal. आपको कोयला कम जलाना पड़ेगा. कोयला कम जलाना पड़ेगा तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा. तो आप मुझे बताओ एलईडी से हमने इन्वायरमेंट के लिए बेटर किया कि नहीं किया? वाई वी पीपल आर डूइंग बेटर इन फॉर द इन्वायरमेंट? क्योंकि एलईडी के आने से अब कोयले को कम जलाना पड़ता है, और कोयले को कम जलाना पड़ता है तो पोल्यूशन कम होता है. तो इन दिस ऑल डायमेंशन यू गॉट इट. सर ये तो फायदा हो गया एलईडी से, यू गॉट इट इन्वायरमेंटल इश्यूज. अनदर वन पता है, अगर यू पीपल विल सी CFL बल्ब, CFL बल्ब बिफोर LED CFL वॉज इन ट्रेडिशन. हम सब CFL ही यूज कर रहे थे, पर CFL के साथ क्या नेगेटिव था पता था? CFL प्रोड्यूसेस द विजिबल लाइट. CFL produces visible light, but with visible light CFL also produces ultraviolet light. अब you tell me guys, ultraviolet light अच्छा होता है या खतरनाक होता है? ultraviolet light खतरनाक होता है. It's very very dangerous. इसका मतलब LED से UV लाइट नहीं निकलता है, बट CFL से निकलता है. इट मीन्स कहीं ना कहीं LED इज गुड. क्यों LED इज गुड? इससे आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू नहीं है. तो मेडिकल पर्सपेक्टिव में LED इज गुड. नेक्स्ट वन, LED को लेकर गवर्नमेंट ब्रॉट अ व्हाट स्कीम दैट आई टोल्ड यू, पॉलिटिकल डायमेंशन, दैट इज उजाला. उजाला स्कीम यू हर्ट इट और नॉट? उजाला स्कीम ये भारत सरकार लेकर आई है स्पेशली LED को बूस्ट अप करने के लिए, घरों घरों तक LED को पहुंचाने के लिए. उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये बोलते हैं उजाला स्कीम. अब देखो, अब जाके आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि अब यू पीपल अंडरस्टूड, मतलब अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली दिस एंटायर सब्जेक्ट इज. और किसी सब्जेक्ट्स में कितने डायमेंशन हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं. पहले मुझे फटाफट रिस्पांस दो कि यहां तक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, फिर हम चलते हैं मेंस के उस टॉपिक पर. फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन रिस्पांस. जल्दी 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 जल्दी, एंड देन आई विल स्टार्ट. Students are very slow. Okay. गुड, वेरी गुड, नाइस. किसी ने मुझसे बोला, नाम शायद ऊपर चला गया, डोंट नो हु इज इट. सर एक बार सोशल डायमेंशन थोड़ा यू अगेन रिपीटेड. कुछ नहीं दोस्त, आप मुझे बताओ, सोसाइटी के लिए एक गैदरिंग ज़रूरी है. मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रेजेंस ऑफ माइंड, और नाइट में मुझे कुछ मीटिंग करनी है. फॉर नाइट में मीटिंग कैसे होगी? जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब एवरीबडी कैन सी टू अदर वन. ओके, नाइट में सब मैरिजेस होती हैं, पार्टीज होते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी हाउ इट केम? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो सम हाउ आई कैन टेल यू कि हम इसकी मदद से सोशल गैदरिंग कर सकते हैं. और उजाला जो एक स्कीम है दोस्त, जो गवर्नमेंट लाई है, पॉलिटिकल डायमेंशन, वो सोशल इशू ही तो है. लोगों की, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए ही तो दिस स्कीम ब्रॉट इट. तो शशांक, आई टोल्ड यू, आई होप यू अंडरस्टूड राइट नाउ हाउ इट विल बी. ओके, अब यू गिव अ हेडिंग, टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स development on human life, right? Technology affects development on human life, and those point I will tell you. First you write advantages, right? First you write advantages. First you write advantages. Advantages. और अब आप लिखेंगे मेरे साथ. Okay, advantages. Technology made life simple and easy. Simple, easy and better. Right, पहला लिखो. Technology made life simple, easy and better. जो मैं बोलूँगा वो लिखोगे. Okay, technology made life simple, easy and better. पहली बात.
दूसरी बात करते हैं, with the help of robotics and machines, with the help of, right, with the help of robotics and machines, with the help of robotics and machines, human beings are doing lesser mistakes. Human beings are doing lesser mistakes. Human beings are doing lesser mistakes. Okay. Next point. Technology save human time. Technology save human time. Technology save human time. And also provide right, and also provide quality outcomes, and also provide quality outcomes for higher production, or with high production. Okay, next point. With the help of various inventions, with the help of various inventions, different types of medical or surgical equipments, different types of medical or surgical equipments, medicines and procedures, are developed those extend the human lifespan, and also save lives, also save lives. Also saves life. Next point. Science and technology brought evolution, yeah, revolution in communication system, and provide different services, in bracket you can write e-governance, etc. Provides different services, in bracket write out e-governance, etc. with e-governance, etc. bracket closed, with various other applications, like अब you can write many examples like telephones, cellular phones, and internet, etc. Cellular phone and internet, etc. अब in the modern respect guys, fax machine को यूज करता है, कोई नहीं करता। आजकल तो क्या करते हैं, हम फोटो की ही स्कैनिंग कर लेते हैं और उसको हम व्हाट्सएप वगैरह से भेज देते हैं। तो अब फैक्स यू डोंट गो, सो दैट्स व्हाई आई स्किप इट हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Television and radio broadcasting services
television and radio broadcasting services, television and radio broadcasting services, television and radio broadcasting services also become possible through the help of ICT, through the help of ICT. ICT means information and communication technology. Next point. Software industries. Next point. Software industry also boom as the world's most progressive industries. Also boom BOOM, also boom as world's most progressive industries, progressive industries. Next point. Energy sector, right? Energy sector also bring a revolution to every sector of life, in bracket, from urban to rural areas. Every sector of life, in bracket, from urban to rural areas. So every sector of life from urban to rural areas. Okay. Next point. Biotechnology / genetic engineering. Biotechnology or genetic engineering also improved genetic defects, and make human life better to survive, With the help of technology, industrial sector also grown. Industrial sector also grown. And try to enhance Indian economy. So you got it, that many dimensions. Okay, in the brief I just has given you, and now you come into the disadvantages. Okay, now write disadvantages. First, write down main source of power generation in India.
main source of power generation in India is coal. Yeah, coal is the main source of power generation in India. So main source of power generation in India is coal. Coal. Approx 58 to 60%. So main source of power generation in India is coal. First stop. Approximately 58 to 60%, approximately 58 to 60% power generation in India is because of thermal power plant. Those emit a lot of pollution. Like CO2, SO2, NOx, CO2, SO2, NOx, etc. Okay, the one point. So finally, what you got it, guys, in this point, it negatively affects the environment. So लिख लेना in this continuation. So it negatively affects. Okay. So it negatively affects the environment. Next point. Nuclear energy can also be misused. As an atom bomb, and source of radiation. Atom bomb and as a source of radiation on human life. And source of radiation on human life. Next. With the invention in space research work, with the invention of space research work, now space also become a place of war. So become a place of war as a fourth domain of warfare. Three domain of warfare is a land, air and water. The fourth domain of warfare is what? This is space. And what is the fifth domain of warfare? Anybody can respond me? Which is a fifth domain of warfare? Anyone can respond me? Which is a fourth domain of warfare? Fifth domain of warfare? No reply. Which is a fifth domain of warfare? No reply. Okay. So listen, the fifth domain of warfare is the cyber. Okay, fine. So this is the point. Next you write disadvantages. So energy disadvantages, space disadvantages, you guys have seen it. One more you can write.
with time, yeah, you guys are right. It's a cyber warfare. I think it's because of signals networking. It's slow, so that's why I'm receiving your message after some interval of time. Okay, but it's okay. So you guys are right. So what is the next I was discussing you? Yeah, with time, satellites after completion of its lifespan, satellites after completion of its lifespan became as a Kessler syndrome. What is a Kessler syndrome? I hope you people know very well. Became as a Kessler syndrome. In bracket write down space debris. Kessler syndrome means space debris. So Kessler syndrome means space debris. Kessler syndromes. So here you got it, the space-based negatives. Okay. Next you go into the information and communication technology. But the next disadvantage will connect with the information and communication technology, right? Due to higher spectrum, with time, in information and communication technology, due to higher spectrum with time in information and communication technology, also become a source of radiations, and create impact, and create a impact on living organism. So living organism, I'm not telling only for the human being, other animals and plants, everyone will come under this effect. Okay everybody, everyone will come under this effect. Okay, what so this is the, you got it here in this case, information communication technology. Next point, due to 44 mission mode projects, of e-governance, due to 44 mission mode projects of e-governance, India is also vulnerable. India is also vulnerable for cyber threats. Or cyber attacks. Actually, you know guys, what is here? Under e-governance, even I will explain you. It's mentioned in your prelims syllabus. Okay. Last day when I show you the prelims syllabus, I told you there in the last lecture. So there is a chances of cyber threats here. Fine. Through the help of e-governance, 44 mission mode projects are connected. And e-governance here, this is a facility of internet services. Under e-governance, I will tell you. There are many mission mode projects are connecting to internet services. It means
It means there have a problems. What about there have problems? Problems have a India have a lot of vulnerability. Okay, if entire India will connect through e-governance services, so many chances, many places have opportunity where people can attack on this all the entire data and all. So more chances of cyber threats. Earlier, when there was no internet services, very less government services was connected. So earlier there was a less chance of cyber attack. But today more vulnerability, because with time India is trying to connect entire thing through internet services. Okay, more internet connections, more services government try to provide you through internet services. So more chances of attack. Here people will get a more opportunity to attack on your services. In that way, guys. I hope you understood. Okay, in that way. So this is here. Next one, guys. Next point. So that was related to information and communication technology disadvantages. Fine. Now next. And rest next you people already know. If machines will come, yeah, AI type of facility will come, so finally people will left their own jobs. Okay, right? Right. Next point, better you write it. Machines may seem inexpensive, right? Machines may seem inexpensive and good to use, inexpensive and good to use, but it carries lot of maintenance, which ultimately make them expensive, Technology also caused many problems to the human being, right? Technology also caused many problems to human beings. Right? As causing eye diseases, enhanced body weight, cancer due to specific radiation technology, etc. Next point. Peoples are becoming lazy. And dependent on technology. Okay. Nowadays children prefer to play computer games, right? Nowadays children prefer to play computer games in place of outdoor games. People are also facing privacy issues. Like email hacking, cell phone signal interceptions, etc. Next point. Due to the latest technology, because cybercrime we already mentioned earlier. Okay, so this portion you left, you come.
due to the latest technology, there is increase in the issues of internal security and terrorist threats. Internal security and terrorist threats. Okay, terrorist threats. So these are the many disadvantages. Those you people have seen it. So it will be enough to write the long answers. Okay, and this is the question especially for your long answer. Here 10 words and 30 words question will never come. Okay, advantages of science and tech, disadvantages. This type of question, how is possible to write in 10 words and even 30 words? So if this type of question comes, so at least 100 words. Okay, you remember. Now come, what about the limitations? Of indigenous technology? What about the limitations of indigenous technology? So what about the limitations of indigenous technology? Indigenous means our technology. Okay, मतलब हमारी टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी कमियां हैं? ओके, उसको भी थोड़ा लिखना होगा, ठीक है? व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द इंडियन टेक्नोलॉजीज, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, लिमिटेशंस. द वन, these are cheaper, right? These are cheaper but inferior to other technologies. मतलब quality performance wise these are cheaper. अब R मत लिखो, these may be cheaper, वो better होगा. These may be cheaper, okay, these may be cheaper, 1 point, these may be cheaper but inferior to other technologies. These may be cheaper but inferior to other technologies. Very inferior to the other technologies. Those are available in global market. So overall, what is the conclusion of the first line? यार हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो क्वालिटी नहीं है. That we should have to develop. Okay. But another side, if you see Apple phones, Oppo, India may users see, okay, kya quality, you will understand very well. Okay, see the second one, guys. Indigenous technology may lead, right? Indigenous technology may lead to higher wastage, right? Indigenous technology may lead to higher wastage. Indigenous technology may lead to higher wastage and increase production cost which will reduce the demand for a product. इतना तो इकोनॉमी you also understand. Okay, एक तो हायर वेस्टेज है. Okay, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है थोड़ी महंगी पड़ जाती है. वहीं चाइना क्या करता है, टेक्नोलॉजी भी सस्ती बनाता है एंड मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन भी कर देता है. दुनिया के सारी जो प्राइजेस होते हैं सब डंप हो जाते हैं और चाइना का सबसे सस्ता हो जाता है. ओके, तो दैट्स वाई चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया. क्यों? एट इंटरनेशनल लेवल वहाँ पे चाइना की पॉलिसी है. ओके, और वो डेफिनेटली वो आगे रहेंगे बिकॉज इन दैट कंट्रीज द पीपल आर एजुकेटेड ऑल्सो. हमारे इंडिया में क्या अनएजुकेटेड, यहाँ पे लोगों को काम से ज़्यादा फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है. द प्रॉब्लम इज हियर. Okay, India have a good potential, but still India is not doing this because everybody are doing the brainwash of Indians. Okay, इसलिए that is many reasons. Okay, सिर्फ कहने से we are Indians, we are the proud of nation, ऐसे नहीं होता दोस्त, करना पड़ता है. Okay, you should think about India and nations. You should dedicate for the India and nation. तब जाके होता है. ठीक है, चलिए. That is not the solution. TikTok बंद करने से हम चाइना से आगे निकल जाएंगे. You are totally wrong. If you want to grow ever in China, so you should go and work towards education sector. You should go and work towards the youth, जो नई generation है, उनको nurture करना होगा. And then you should start to think about India. और हाँ, तब इंडिया आगे निकलेगा और बिल्कुल निकलेगा. Only through Facebook and WhatsApp के comments और messages से नहीं. Okay?
फाइन, टिकटॉक बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन कि अब हम चाइना को ऊपर हम उसको इकोनॉमिकल प्रेशर वी आर ना नथिंग. इट मीन्स आपको नॉलेज कम है, दैट्स वाई यू आर बिलीविंग ऑन इट, इज नॉट अ सोल्यूशन. ओके, सो पॉलिटिकल विल, इकोनॉमिकल, एवरीथिंग, एवरी लेवल पर अगर वी विल डू वर्क, लेटर ऑन वी विल गो हेड. आप डिफेंस में देखो ना, चाइना हमसे बहुत आगे, बट द प्रॉब्लम इज हियर ना, पीपल नेवर वांट टू लिसन इट. People never want to listen it. अगर if this type of statement I will start to say it, पहले भी मैं कहता था, लेकिन this time if I said the people will take me negative, anti-nationalist and all. This is the problem. सच बोल नहीं सकता. But I am your teacher. So what about the factual data? जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा. Why? What about the limitation of indigenous technology? मैं एक बात और बताता हूँ. In India में जो research and development होता है, R&D होता है, not even any government, either it was earlier Congress या today it is a BJP, ये इसमें पैसे ही नहीं देते हैं काम करने के लिए. This is the reason we people are depend on other country ना. जब हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं होगा, नई चीजें ही डेवलप नहीं करोगे, तो जिंदगी भर भीख ही मांगोगे ना. पहला गवर्नमेंट जो था वो 0.9% ऑफ GDP देता था, कांग्रेस, कितना घटिया था ना. और ये वाला जो है वो 0.6% देता, और कम कर दिया है. तो राफेल जैसी चीजें तुम बनाओगे कहां से, तुम तो खरीदोगे ना. यहाँ पे शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने 70 साल में देश में राफेल नहीं बना पाए. अभी भी यू पीपल आर डिपेंड ऑन अदर कंट्री. लेकिन इसको कैसे प्रेस करते हो कि हमें दूसरे कंट्री से, मतलब दूसरे कंट्री वालों को भी नहीं पता था कि राफेल इतना इंपॉर्टेंट है जितना भारत वालों को पता चल गया. द प्रॉब्लम इज दिस, द रूट कॉज वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व. और नेक्स्ट बार अगर हम अगली बार फिर भिखारियों की तरह अमेरिका से कहेंगे भैया F-22 दे दो, अरे तुम कब बनाओगे. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम. और यही मैं पढ़ा रहा हूं, लिमिटेशंस. ओके, आप न्यू जनरेशन इज नॉट वर्किंग टुवर्ड द रूट कॉज एंड दिस इज द प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, आप खुश होइए, राफेल आ गया, वेरी गुड, ठीक है. कांग्रेस भी मंगा रही थी, बीजेपी भी मंगा रही थी. ओके, इनडायरेक्टली आई एम गिविंग यू इन दिस पॉइंट. ओके, दोनों भीख ही मांग रहे थे ना. किसी ने कभी कहा हम खुद बनाएंगे, नहीं. स्टिल वी आर डिमांडिंग द F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट. अमेरिका से भिखारियों की तरह मांग रहे. बट अगर इन दैट वे आई विल एक्सप्रेस ना, तो पीपल विल टेक इट नेगेटिव, एंटी नेशनलिस्ट है, देशद्रोही है, देश से बाहर करो. अरे भाई, APJ कलाम क्या कहते थे, इंडियन यूथ हैव अ गुड पोटेंशियल, बट वो गलत जगह जा रहा है. ओके, सो R&D करो ना. इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज में वाई हैव अ लिमिटेशंस, मैं बताता हूं ना. दीज आर द पॉइंट्स. फाइन, खुश हो जाना जिस दिन अमेरिका से F-22 आएगा, बहुत बढ़िया, हमारे पास हो गया. बेवकूफ, तुम कब बनाओगे, जिंदगी भर भिखारियों की तरह मांगोगे. बट लीव इट. अच्छा, रिड्यूस द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, अनदर थिंग. कम ऑन द थर्ड पॉइंट हियर. Okay, since indigenous, right, next point. Even those indigenous technology we are doing to test, only it is in one environment, और वो इंडिया का environment है. यानी कहने का मतलब है जितनी भी टेस्टिंग यू पीपल आर डूइंग ना, वो सब एक ही इन्वायरमेंट में करते हो. दूसरी जगह की कंट्री में वो तुम्हारा टेक्नोलॉजी जाती फेल हो जाती है. कहीं टेम्परेचर इज वेरी लो, यूरोप पे योर टेक्नोलॉजी विल फेल. सपोज ऐसी कोई चीज तुम क्यों बनाते हो, तो योर टेक्नोलॉजी दोज यू आर गोइंग टू डेवलप, यू शुड टेस्ट इट, यू शुड चेक इट. पूरी दुनिया में चेक होना चाहिए, एंड देन द प्रोडक्ट विल बी ग्लोबलाइज. ये अमेरिका और चाइना करते हैं. So write it, fine, write it. Since indigenous technology is tested, right. Since indigenous technology is tested, since indigenous technology is tested in only one country. I hope you understood. Is tested in only one country. Okay. It may not work. मतलब ऐसे लिखो comma. There are chances that only one country, comma, there are chances that it may not work if environment or other factors change. Okay, it may not work if environment or other factors change. I hope you understood. If you want to develop any products and you want to put it as a successful product worldwide, global level पर, तो what is necessary here, उसकी टेस्टिंग पूरी दुनिया में होनी चाहिए. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के, जो टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं. और वो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था क्यों हमारी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं. ठीक है, तो R&Ds हो नहीं रहा. ओके, देयर इज मेनी थिंग, प्राइवेटाइज सेक्टर सब आ ही रहे. एंड व्हाई नॉट दिस, देखो ना, वी हैव स्टार्टेड टू सेंड आवर सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर. SpaceX से भिजवाने लगे, एक दिन इसरो भी बंद होगा. गॉट इट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. बट है ना, न्यू जनरेशन को थोड़ा सोचना होगा.